अमृता, हेलो। Hi everybody. Can you guys hear me? Yeah, Khushi, Santosh, Amruta, can you guys hear me? Yes, sir. Okay. Guys, we're just waiting for 1 minute. We had actually told the time of 6:30. Okay, students should join in. Other students should join in now. Okay, just wait. Let's hold on. अमृता, आपकी बात साक्षी मैम से हुई थी कि मेरे से हुई थी अमृता? Sir, can you repeat your question? नहीं, नथिंग नथिंग। Yeah. Okay, so we have Rahul has joined us. Rahul, Amit, Hiral, Khushi, Santosh, and Amruta. Okay, so first of all, thank you so much guys for joining. Okay. By the way, there will be some students, okay, जो शायद attend ना कर पाए. First of all, everybody is okay with Hindi and English language both, or anybody who basically understands only Hindi. Are you guys okay with Hindi and English both? Just let me know in the comments. Okay, Santosh is like Hindi and English both will be okay. Okay, very good. Now, guys, first let's start. Just 1 second. Yeah. Okay. Sanjay has also joined. Shreyans has joined. Okay. So first of all, welcome everybody to Placer. Okay. I think so. We have spoken to most of you all. All right. And we have already explained. This is the second demo lecture that is getting conducted. हमारा already एक demo lecture for accounts already conduct हो गया था. Okay. Today's session is basically considering your paper number 7. That is एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. उसका डेमो लेक्चर अभी स्टार्ट होने जा रहा है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, इज द ऑडियो एंड द वीडियो क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तुम लोगों को आवाज बराबर से आ रही है? बस मुझे उसका कंफर्मेशन दे दो. हीरल हैज सेड यस, अनन्या हैज सेड यस, संतोष इज सेइंग यस. व्हाट अबाउट द अदर्स? इज द ऑडियो एंड द वीडियो क्लियर? अंजी, अमृता, अमित, सुमिया. Perfect. Very good. Okay, guys. Let's start. Just have a look at the screen now. Okay. First of all, as you can see on the screen, I'm just showing you which is the subject demo that I'm conducting today. Okay. There are total 8 subjects. Total 8 subjects in the CA inter level. Okay. Whichever route you are entering from, whether you are at the foundation route or direct entry. Okay. Out of that, okay, there are total 8 subjects. Now pay attention on the screen. Yeah. So as you can see, guys, group 1 में there are 4 subjects: accounts, law, costing and taxation. And group 2 में there is advanced accounts, audit, EIS, SM, that is enterprise information systems, and financial management economics. ठीक है. So there are total 8 subjects. Out of this, paper number 7. आज मैं जो डेमो कंडक्ट कर रहा हूँ वो पेपर नंबर 7 का है. Is that clear to everybody? Everybody write in the comments पेपर नंबर 7. बस इतना लिख के भेजो कमेंट सेक्शन में पेपर नंबर 7, सो दैट आई नो दैट आपको समझ में आ चुका है प्रॉपर्ली. पेपर नंबर 7. वेरी गुड. कीप इंटरेक्टिंग, कीप टाइपिंग इन द चैट बॉक्स. ओके, सो यू गाइस आल्सो आर कनेक्टेड इन द लेक्चर. ठीक है. नाउ
Guys, first of all, let me explain to you the how does this paper come. Okay, ध्यान से देखना. कोई भी क्वेश्चंस होंगे या कोई भी क्वेश्चंस होंगे, हाउ द बैच विल बी कंडक्टेड, सब कुछ मैं क्लास के बाद में बताऊंगा. पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन लाइव में पढ़ाया कैसे जाता है. तो इसलिए हम स्टार्टिंग विद द डेमो. बैच की सारी डिटेल्स, क्या क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैं क्लास के एंड में बताऊंगा. ठीक है. डेमो लेक्चर विल बी फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स. अगले 7 o'clock से 11 to 7:15 तक डेमो लेक्चर चलेगा. आफ्टर दैट आई टेल यू द डिटेल्स अबाउट द बैच. ठीक है. सबसे पहले पेपर नंबर 7, इट इज द मोस्ट इजिएस्ट पेपर ऑफ ऑल. ठीक है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन फॉर दैट? क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन पेपर होता है जो सिर्फ 2 साइड्स का है. इट इज ओनली 2 साइड्स. ठीक है. जो क्वेश्चन पेपर इतना छोटा होता है, एंड इंस्टीट्यूट ऑलवेज विल आस्क यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दैट कि व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग, व्हाट इज ई कॉमर्स, व्हाट इज ब्रिंग योर ओन डिवाइस. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. यहाँ पे केस स्टडी में वो लोग तुम्हें कंफ्यूज नहीं करते. इंस्टीट्यूट सीए इंटर लेवल पे ईआईएस के पेपर में, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के पेपर में कंफ्यूज नहीं करता. ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं. अब मुझे कमेंट्स में लिख के बताना तुम्हारे लिए क्या इजी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन की केस स्टडी. व्हाट इज मोर इजियर? कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या इजी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आना कि केस स्टडी आना? बताओ. व्हाट इज इजियर? इफ देयर इज ऑफ कोर्स यस, मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग डायरेक्ट क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो काफी आसान होता है, बराबर ना, कि भाई व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट. तो तुम्हें कंफ्यूज होने के चांसेस, या कंफ्यूज होने के चांसेस कम होते हैं. कंफ्यूज होने के चांसेस तुम्हारे कम होते हैं. क्लियर है? नाउ इस पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं. मेजॉरिटी क्वेश्चन आर डायरेक्ट. नाउ लुक एट द पेपर पैटर्न ऑफ दिस पेपर. सी, वी हैव योर पेपर नंबर 7, which is actually divided into 2 parts. पेपर नंबर 7A एंड पेपर नंबर 7B. ठीक है. पेपर नंबर 7A का नाम है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई ये बहुत कंप्यूटर्स है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, वैसे सब्जेक्ट लगता है. दूसरा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अब पहले समझते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हाई एग्जैक्टली दिस सब्जेक्ट. ओके, ईआईएस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तुम्हें सिखाया क्यों जा रहा है, व्हाट इज द रीजन तुम्हें ये सब्जेक्ट सिखाया जा रहा है. ओके, नाउ आई वांट यू गाइस टू टेल मी. आप लोगों ने कुछ सोचा होगा कि सीए बनने के बाद मुझे क्या करना है. कुछ तो सोचा होगा कि मुझे भाई जॉब करनी है, मुझे खुद का सीए फॉर्म चालू करना है, मुझे पढ़ाना है, आई वांट टू टीच, समथिंग लाइक दैट. कुछ सोचा हुआ है किसी ने? एनीबडी हु हैज थॉट कि मेरे को सीए बनने के बाद मुझे क्या करना है, या मुझे फर्दर स्टडीज करनी है? आई वांट टू नो दैट आंसर फ्रॉम यू. ठीक है. डोंट वरी, आई विल नॉट नेम द पर्सन. बस मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ तुम्हारा क्या एग्जैक्टली इज द सिचुएशन, कि सीए बनने का तुम क्या बनना चाहते हो. Hiral is saying further studies. Hiral is saying further studies. Okay. One person is saying further studies. One person is saying job. Okay. Another person is saying job. So 2 people are saying job. Okay. One person is saying further studies, job. Okay. Ananya is saying practice. Ananya is saying that she wants to do practice. ठीक है. सीए की प्रैक्टिस खोलना चाहती है अनन्या मैडम. ओके. सांजी इज आल्सो सेइंग फर्दर सीए के बाद फर्दर स्टडीज. वाओ. ओके. एनीबडी एल्स और कुछ सोचा है कि भाई सीए बनने के बाद क्या करना चाहते हो? Anything else? I think so. All the answers are done. Okay. So can you see? अब बहुत केयरफुली सुनना. ये जो फर्दर स्टडीज है, फर्दर स्टडीज करने के बाद क्या होगा? एट द एंड ऑफ द डे कैन आई से तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बच जाएंगे. या तो तुम जॉब करोगे, या तो तुम तुम्हारा खुद का बिजनेस करोगे. एम आई राइट? बराबर ना? कमेंट्स में मुझे बताना इज दिस राइट और रॉन्ग. फर्दर स्टडीज के बाद भी तुम या तो किसी के जहाँ जॉब करोगे या खुद का बिजनेस करोगे. बराबर ना? मुझे बताओ प्रैक्टिस. Can I say practice is also a kind of business? बराबर ना? Practice is also kind of business profession है ना हमारा. बराबर है? So अगर तुम नोटिस करोगे एट द एंड, ये सारे जो आंसर्स तुमने मुझे दिए,
दे ऑल कम डाउन टू ओनली टू थिंग्स, बराबर ना, इट इज ईदर जॉब और इट इज ईदर बिजनेस, राइट। तो दो चीजों पे हम लोग नैरो डाउन करके आ चुके हैं, ठीक है, कि भाई आज सीए बनने के बाद हमारे पास दो ही ऑप्शन बच जाएंगे, या तो मैं कोई जॉब करूँ या तो मैं प्रैक्टिस करूँ, विच इज माई बिजनेस। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? अब तक एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर? एनी डाउट स्टिल नाउ? एनी डाउट स्टिल नाउ? ओके परफेक्ट, सब लोग बोल रहे हैं नो सर, नो डाउट्स। ठीक है, वेरी गुड। जितना चैट करते रहोगे उतना मुझे समझ में आएगा। ओके परफेक्ट। नाउ पे केयरफुल अटेंशन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पे केयरफुल अटेंशन। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है जॉब का, ठीक है, आगे जाने के बाद द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड बिजनेस is the fact that when exactly do you have to get clients for yourself. सर इसका क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल लेते हैं, नाउ पे केयरफुल अटेंशन। आज अगर मैं अगर रिलायंस में कोई जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं रिलायंस में एक पोजीशन पे हूँ, ठीक है, मैं रिलायंस में धीरे 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 आगे आगे ऊपर बढ़ते जाऊंगा, और उसके बाद मैं क्या बन जाऊंगा? आई विल बिकम द सीईओ, सीएफओ बन जाऊंगा उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो मुझे बताना गाइस, जहाँ पे आज मेरी जो सैलरी होगी इट विल बी इन द रेंज ऑफ 1.5 2 करोड़ होगी, पर मुझे बताओ आज जब वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे 2 करोड़ रुपए देगा, तो मुझे बताओ मुझे आज उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट करके देना पड़ेगा ना। मुझे उनको क्लाइंट्स लेके आने पड़ेंगे 20 करोड़ के, 30 करोड़ के, राइट। तो आज इन अ जॉब सिनेरियो मुझे क्लाइंट्स लेके आने पड़ेंगे, बट एट अ वेरी लेटर स्टेज। जबकि आज अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्लाइंट्स आज क्या चाहिए ना, आज अगर जैसे अनन्या ने बोला कि शी वांट्स टू स्टार्ट हर ओन प्रैक्टिस, तो आज अनन्या को क्लाइंट्स आज चाहिए कि 10 साल बाद चाहिए? मुझे वो बताओ। आज अनन्या अगर प्रैक्टिस आज स्टार्ट कर रही है तो शी विल वांट क्लाइंट्स राइट नाउ, बराबर ना, जो उनके पास आएंगे, ऑडिट कराएंगे, आज की आज चाहिए। लेकिन जॉब में तो अभी आपको जॉब में आपको बिजनेस एक्सपांड कब करना पड़ता है? जब आप बड़े डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाओगे 10 साल बाद, उसके बाद करना पड़ता है, राइट। So try and understand, whenever you are in a job scenario, you will have to do business, but at a very later stage, 10 साल बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर आप आज बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपको क्लाइंट्स लाने पड़ेंगे, लेकिन राइट नाउ सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कैन वी कंक्लूड कि आज आज नहीं तो कल आपको हम सबको बिजनेस तो करना ही है। इतना क्लियर हो गया भाई? इतना क्लियर हो गया सब लोगों को? एवरीबडी क्लियर कि हमें कभी ना कभी तो बिजनेस करना ही पड़ेगा। अगर हम जॉब में रहेंगे तो 10 साल बाद बिजनेस ग्रो करना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, और या फिर अगर आज मैं बिजनेस करने वाला हूँ तो मुझे आज का आज ही उसको ग्रो करना है, मुझे आज क्लाइंट्स चाहिए। ये फंडा क्लियर हो गया सबको? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, ना, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो अब मैं एक मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ, ठीक है। नाउ यू गाइस टेल मी, हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट? प्लेनेट, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे धरती की बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट राइट नाउ? एज ऑन डेट कौन है? दिशा बोल रही है जेफ बेजोस। संतोष बोल रहा है इलॉन मस्क। मतलब उन दोनों के बीच में चलते रहता है, बराबर, नंबर 1 नंबर 2, राइट ना। कुछ लोग बोलते हैं इलॉन है, कुछ लोग जेफ बेजोस, और इलॉन के बीच में ऊपर नीचे चलते रहता है, ठीक है। मुझे बताओ सालों से नंबर 1 पे कौन था? सालों से, बचपन से, जब हम बचपन स्कूल में थे तब से कौन था नंबर 1 पे? हमेशा नंबर 1 पे। हु वाज द पर्सन ऑलवेज नंबर 1? ऑलवेज नंबर 1। वेरी गुड। कौन थे भाई ये लोग? बिल गेट्स, बराबर ना। आप लोग को एक पैटर्न नोटिस कर पर पता चल रहा है कि नहीं? जहाँ पे देख रहे हो ना, आज जिसका नाम फोर फोर लेटर का होता है, इलॉन 4 लेटर, जेफ 4 लेटर, बिल 4 लेटर, ये लोग सब नंबर 1 बनते हैं प्लेनेट पे, ठीक है। तो भाई जिसका नाम 4 लेटर है कौन है? देखो अमित हमारे पास है। अमित इज ऑल्सो 4 लेटर वर्ड, ओके, ठीक है। तो इन दैट केस आज तुम नोटिस कर रहे हो जेफ, इलॉन। हाँ, अनन्या बोल रही है सर नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ठीक है। हाँ, तो यार ऐसे केस में यार मेरा भी नाम नहीं है, मेरा भी नाम 6 लेटर है, क्या करें? ओके, तो यार गाइज द पॉइंट इज, मुझे बताओ एक चीज इन तीनों के बीच में कॉमन है। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, और इलॉन मस्क, बिल गेट्स एंड हमारे जेफ बेजोस, तीनों मुझे बताना आज बिजनेस करके बड़े हुए कि नहीं? नंबर 1 पे कैसे पहुंचे? बिजनेस करके पहुंचे, बिजनेस करके पहुंचे। और मुझे बताओ आज क्या वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं? वो मुझे बताइए।
कमेंट्स में लिख के बताना ट्रेडिशनल बिजनेस है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, वो बताओ कैसा बिजनेस है, कैसा है भाई? टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, बराबर ना? किसी का भी इंटरनेट अगर कम नहीं ज्यादा हो जाता है तो डोंट वरी, ठीक है, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। ओके, टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, राइट? जाहिर सी बात है आज। ओके, सो नाउ पे केयरफुल अटेंशन। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क एंड हमारे बिल भैया, ठीक है? मुझे बताओ ये तीनों एक प्लानिंग के बगैर नंबर वन पे पहुंचे होंगे क्या? आज टेक्नोलॉजी वाले तो बहुत लोग हैं, बराबर ना, लेकिन नंबर वन पे एक स्ट्रैटेजी ने उनकी हेल्प की होगी कि नहीं? एक स्ट्रैटेजी होगी, एक प्लान होगा जिन्होंने उनको नंबर वन पे पहुंचाने में मदद की, बराबर ना? तो नाउ आर यू रियलाइजिंग दैट दो चीजें आपको नंबर वन पे खरबोपति बना सकती हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। पर दूसरा कौन सा? क्या इन्होंने नीचे किराने की शॉप ओपन की है बच्चों? बताओ मुझे। इलॉन मस्क ने क्या नीचे किराने की शॉप ओपन की है? अपने जेफ भैया ने नीचे का किराने की दुकान ओपन की है, ऑफलाइन शॉप ओपन की है क्या, जहाँ पे वो सब्जी मंडी बेचते हैं? नहीं ना। टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस चला रहे हैं लोग। तो टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी, दो चीजें कौन सी कमेंट्स में लिख के बताना। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी प्लस स्ट्रैटेजी। क्या बोला, क्या बोला? टेक्नोलॉजी प्लस स्ट्रैटेजी, कमेंट्स में लिख के बताओ। टेक्नोलॉजी प्लस स्ट्रैटेजी, ये दो चीजें, ये दो चीजें ही जरूरत है, ठीक है? सबके रिप्लाईज चाहिए मुझे, सबके रिप्लाईज कमेंट्स में लिखो, कमेंट्स में लिख के बताओ। अनन्या इज रिटन, अमृता इज रिटन, सब लोग लिखो। हाँ, टेक्नोलॉजी प्लस स्ट्रैटेजी, जी हाँ, टेक्नोलॉजी प्लस स्ट्रैटेजी। ये दो चीजों का अगर आपके ऊपर एकदम मजबूत जोड़ है, पीपल आर देयर विथ यू, ओके, इन दीज टू थिंग्स, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी, आपको कोई रोक नहीं सकता है खरबोपति बनने से, ठीक है? तो देयर आर ओनली टू थिंग्स। एंड मुझे बताना, ध्यान सुनना, आज हम सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं, बराबर ना? मतलब मैं तो भाई पास हो चुका हूँ, तुम लोग अभी स्टूडेंट्स हो, ठीक है? तो मतलब मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था वैसे, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ जहाँ पे बेसिकली आज यार गाइस, यू गाइस आर द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ द कंट्री, बराबर ना? तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि आज तुम्हें जो सिखाया जा रहा है, द वे, द सब्जेक्ट जो तुम्हें सिखाए जाएंगे, उनमें टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए और स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए फॉर रनिंग दीज बिजनेसेस? आज बेसिकली जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज देखोगे ना, उनका हर एक जन का जो सीएफओ होता है ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है। क्यों? बिकॉज हम वी ऑलरेडी नो टेक्नोलॉजी एज वेल एज स्ट्रेटेजी, इसीलिए तुम्हें ये पेपर नंबर 7 इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब देख रहे हो नाम, देख रहे हो चैप्टर, सब्जेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है भाई? देख रहे हो नाम, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ये जो पेपर है, ये पेपर, ये तुम्हें सिखाएगा अबाउट टेक्नोलॉजी और ये तुम्हें सिखाएगा अबाउट स्ट्रेटेजी। और ये दोनों कहाँ अप्लाई करनी है? इन दोनों को हमें अप्लाई करना है हमारे बिजनेस में। जब हम इन दोनों को हमारे बिजनेस में अप्लाई करेंगे, तब जाके बच्चों क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन लाइफ। देखो हाँ, सी मैं तो भाई बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पैसे कमाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? मुझे आप कमेंट्स में बताना, पैसा चाहिए कि नहीं? सबको पैसा चाहिए, बराबर ना? पैसा चाहिए भाई, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। थोड़ा बहुत, थोड़ा छोटा मोटा पैसा चाहिए कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए? वो छोटा छोटा मोटा पैसा करना है तो इंदा के यार नॉर्मल कर लेते, बराबर, पढ़ाई। खूब सारा पैसा चाहिए, अभी खूब सारा पैसा करने के लिए बहुत, हाँ, खूब सारे पैसे के लिए यार खूब सारा ये भी चाहिए रहेगा ना। बेसिकली यू नीड द काइंड ऑफ नॉलेज। ओके, तो वो नॉलेज तुम्हें यहाँ पे दी जा रही है बाय वे ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बाय वे ऑफ स्ट्रेटेजी। पहली बात तो ये क्लियर हो गया, ये सब्जेक्ट तुम्हें क्यों लाया गया। तो आज के बाद कभी भी ये मत सोचना कि सर ये सब्जेक्ट क्यों डाला है। ये सब्जेक्ट तुम्हारे भले के लिए डाला है भाई, तुम्हारे भले के लिए डाला है। क्योंकि अगर तुम्हें ये करना नहीं आएगा ना, ये बिजनेस कैसे रन करना है वो समझ में नहीं आएगा, तो इन दैट केस यू विल नॉट रीच दैट पोजिशन जहां इंस्टीट्यूट में पहुंचाना चाहता है। मुझे कमेंट सेक्शन में अंडरस्टूड लिख के भेजना, अंडरस्टूड, अगर तुम्हें समझ में आया कि ये सब्जेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया। मैं तो इस सब्जेक्ट को बिजनेस ही बुलाता हूँ, मेरे लिए सब्जेक्ट बिजनेस है, मैं तुम्हें बिजनेस स्टडीज ही करा रहा हूँ, ठीक है? क्यों करा रहे हैं ये चीज? बिकॉज टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी, दोनों चीजें जब साथ में आ जाएंगी तो तुम्हारा बिजनेस स्काई रॉकेट हो जाता है। क्लियर हो गया? पक्का? और मैं, अच्छा,
क्लियर है? अंडरस्टूड? एवरीबडी अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? आई वुड जस्ट लाइक टू वेट फॉर अ मिनट नाउ। मैं 30 सेकंड वेट करूंगा। किसी का भी क्वेश्चन है आप अनम्यूट कर सकते हो या तो फिर चैट पे लिख के बता सकते हो, ठीक है? ऐसा कोई टेंशन मत लो, कोई किसी को जानता नहीं है, ठीक है? तो ऐसे कोई शर्माइए नहीं, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो यार बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है? कि सर ये ऐसा क्यों? चैट में भी लिख के बता सकता हूँ, मैं ऑन द स्पॉट आंसर दे दूंगा। टेक्नोलॉजी प्लस स्ट्रेटेजी, परफेक्ट, क्लियर हो गया? डन। ओके, वेरी गुड। नाउ दैट द कॉन्टेक्स्ट इज सेट, मैंने तुम्हें ये भी समझा दिया कि पेपर काफी आसान होता है, ठीक है? ये भी समझा दिया मैंने कि भाई पेपर पेपर में एग्जैक्टली होता क्या है, वो भी तुम्हें समझा दिया कि भाई व्हाई इज दिस पेपर इंट्रोड्यूस्ड। ओके, एक बार बच्चों ईआईएस का जो पेपर है उसके है ना 5 चैप्टर है हमारे, 5 चैप्टर एक बार देख लेते हैं। ये देखो 5 चैप्टर, हमारा सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो है बच्चों इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है? इस चैप्टर से हमारी शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक है? स्टडी मटेरियल के अंदर ये होता है बच्चों चैप्टर नंबर 3, ये होता है चैप्टर नंबर 3। स्टडी मटेरियल के अंदर ये चैप्टर नंबर 3 डाला गया है, लेकिन ये चैप्टर इज द बेस बिल्डिंग चैप्टर। कौन सा बच्चों? बेस। तुम्हारी जो बेसिकली वर्डिंग्स होती हैं, तुम्हारे जो बेसिकली सेंटेंसेस होते हैं इस चैप्टर सब्जेक्ट में, तो इस दिस चैप्टर विल गिव यू अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो तुम्हें पूरे सिलेबस में इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ये सर क्या होता है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम, अभी बताऊंगा, ठीक है? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ऐसा एक ही सेंटेंस में सब कुछ समझा नहीं सकता हूँ ना, रुक जाओ बताऊंगा। मुझे सिर्फ इतना बताना, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल मैं कहाँ करता हूँ बच्चों? इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ मेरे बिजनेस में, ठीक है? मुझे बताना ई कॉमर्स, अरे ई कॉमर्स कौन सी कंपनी है आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं हर रोज? कौन सी ई कॉमर्स कंपनी तुम्हारे आजू बाजू में दिखती है? बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, कौन सी कंपनीज है ई कॉमर्स वाली? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कौन सी है भाई? हर रोज इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओ आ गया अमेजोन आ चुका है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वेरी गुड। फ्लिपकार्ट, यस। पेटीएम पे भी पेटीएम मॉल आ चुका है, पेटीएम मॉल, वेरी गुड। और भी कुछ? एनीथिंग एल्स? ग्रोफर, स्विगी, सब सब कुछ ई कॉमर्स है, बराबर ना? मुझे बताओ ये लोग क्या चने मूंगफली बांट रहे हैं क्या? मुझे बताओ अमेजोन अमेजोन ये लोग क्या कर रहे हैं? चैरिटी कर रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं? बताओ भाई, चैरिटी कर रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं ना ये लोग, ठीक है? तो पहला चैप्टर भी बिजनेस, दूसरा चैप्टर भी बिजनेस, बराबर है? अलीबाबा, यस अलीबाबा भी, वेरी गुड। लेट्स नॉट गो गेट इनटू चाइना, लेट्स स्टे इंडिया स्पेसिफिक, ओके? ठीक है, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा वरना लेक्चर, ओके? हाँ बच्चों, फिर उसके बाद, हाँ अरे ये लो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। अरे मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी को बिजनेस में लेके आना, टेक्नोलॉजी को बिजनेस में लेके आना, वापस कहना इसे चैप्टर नंबर 3 अगेन टॉक्स अबाउट बिजनेस, बराबर है कि नहीं? फिर बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, किसी ने टैली का नाम सुना है? टैली, टैली का नाम सुना है? टैली, अरे चार्टर्ड यस अकाउंटेंट सर। तो पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं टैली, ठीक है? हाँ, तो इन द केस टैली, टैली के अंदर मुझे बताओ तुम कौन से ट्रांजैक्शन डालते हो? बिजनेस के ट्रांजैक्शन डालोगे ना, परचेस सेल, ठीक है? तो ये भी बिजनेस में इस्तेमाल होता है। और मुझे बताओ कोर बैंकिंग, वाह, ये बैंक तो मुझे बताओ चैरिटी करती है ना यार? बैंक तो चैरिटी करने के लिए बैठी है, चैरिटी करती है ना बैंक? क्या करती है बैंक? बिजनेस करती है कि चैरिटी? बैंक खुद का क्या करती है? बिजनेस ही है ना, अगेन बिजनेस। मतलब डू यू रियलाइज बच्चों, आपको रियलाइज हो रहा है क्या कि हर एक चैप्टर का नाम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम तो तुम्हें बिजनेस सिखाएंगे, हम तो तुम्हें बिजनेस सिखाएंगे, लेकिन हम तुम्हें सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाएंगे, हम तुम्हें सिखाने वाले हैं टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, आज हम तुम्हें किराने की दुकान नीचे की खोलने नहीं सिखाएंगे, हम तुम्हें सीधा ई कॉमर्स खोलना सिखाएंगे, ई कॉमर्स की कैसे चलता है, ई कॉमर्स वो शो करेंगे, ठीक है? चलो बच्चों, अब तक आई थिंक सो नाउ द ऑल द 5 चैप्टर आर क्लियर। सर 5 चैप्टर है, सर क्या क्या होता है इसका मार्क्स एलोकेशन क्या है 5 चैप्टर का? अभी 5 चैप्टर का मार्क्स एलोकेशन बता देता हूँ, ध्यान सुनना। यस, एसएम, इसके अंदर हमारे होते हैं 5 चैप्टर, ठीक है? इसके अंदर हमारे हैं 8 चैप्टर, ठीक है? ईएएस आता है बच्चों 50 मार्क्स का, कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स। और एसएम भी आता है बच्चों 50 मार्क्स का, ठीक है? ये डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, यहाँ पे 15 मार्क, 35 मार्क, यहाँ पे 15 मार्क और 35 मार्क। 15 मार्क का आता है बच्चों तुम्हारा एमसीक्यू, 35 मार्क का आता है बच्चों तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव। 15 मार्क का आता है बच्चों एमसीक्यू और 35 मार्क का आता है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव। मार्क्स एलोकेशन समझ में आ गई सबको? यहाँ पे
5 चैप्टर है, हर चैप्टर 10 मार्क का है इधर, यहाँ पे हर चैप्टर 10 मार्क का है। क्योंकि क्या है, सिलेबस देखने के बाद ही बच्चों में पहला क्वेश्चन पूछे, सर कौन सा चैप्टर छोड़ के जाएं? ठीक है, तो भाई तुम्हारे ऊपर है, कोई चैप्टर छोड़ के जाओगे तो सीधा 10 मार्क निकलेंगे। ठीक है, सीधा 10 मार्क्स स्ट्रिक्ट पे है। हर एवरी चैप्टर इज ऑफ 10 मार्क्स, 10 10 10 10 10। ठीक है, तो पहली बात कान खोल के सुन लेना, सीए के एग्जाम में कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, नजर घुमा के तो जाना ही जाना है। ठीक है, कोई अगर लग रहा है कोई लीस्ट सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, नजर घुमा के तो जाना ही जाना है। ठीक है, छोड़ के कभी नहीं जाना है। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती कर लेते बच्चे। ठीक है, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी पेज नंबर से उठा के क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ भी छोड़ के जाना नहीं है, पढ़ के तो पूरा जाना है। ठीक है, हाँ, जाहिर सी बात है एबीसी कैटेगरी बताई जाएगी। ठीक है, लेकिन सी कैटेगरी वाले पे नजर घुमा के पक्का जाना है, कि ऐसा नहीं कि ऑप्शन पे छोड़ दिया, मैं सी में डाल दिया तो तुम तो भाई पूरा उसको वो उड़ाई देते हो सिलेबस से। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं पहला चैप्टर बच्चों, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, ओके। अब नाउ केयरफुली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पे अटेंशन टू दिस फैक्ट। मैंने चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सर ये कौन से नोट्स है, क्या हमें ये नोट्स मिलने वाले हैं क्या, ये कौन से नोट्स है हमें मिलने वाले हैं क्या? जी हाँ, आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ठीक है, मैं क्यों बनाऊंगा खुद के लिए, आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ठीक है, जो जो जाहिर सी बात है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सारे के सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे। तो ये है बच्चों हमारे हमारे चार्ट बेस्ड नोट्स, चार्ट वाइज। ठीक है, दीज आर द नोट्स जो हमारे चार्ट फॉर्म में, ये देख रहे हो यहाँ पे जैसे चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस होती हैं, चार्ट होता है। ठीक है, ऐसे। और साथ साथ में बच्चों तुम्हें फुल फ्लेजेड नोट्स भी मिलेंगे, फुल नोट्स। ठीक है, विच इज अ स्कैनर फॉर्मेट। तो मैं दिखा देता हूँ मैं किस तरह से होते हैं वो नोट्स, ये देख लिए, ये देख रहे हो, दीज नोट्स आर इन अ स्कैनर फॉर्मेट। देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे केस में, जहाँ पे दिस क्वेश्चन नंबर 1 इट इज स्कैनर, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये होते तुम्हारे मेन नोट्स। ठीक है, तो तुम्हारे लिए दोनों नोट्स रेडी हैं। ठीक है, मेन नोट्स भी रेडी हैं और तुम्हारे रिवीजन वाले समरी नोट्स भी तुम्हारे लिए रेडी है। ठीक है, ओके। अब पहले समझते हैं बच्चों व्हाट एग्जैक्टली आज हमारा सब्जेक्ट जो हम लोग समझने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है बच्चों इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स, बराबर ना? तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बच्चों हमें समझना पड़ेगा चैप्टर का नाम का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ समझना पड़ेगा। ठीक है, उसका अर्थ कैसे समझेंगे? तीनों को स्प्लिट कर देते हैं, इंफॉर्मेशन, सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स, इन तीनों को स्प्लिट कर देते हैं। तीनों वर्ड्स का मीनिंग जब हम समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई चैप्टर के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अब तक एवरी आई जस्ट लाइक टू टेक अ पॉज फॉर 10 सेकंड, मुझे बताओ अब तक जो समझाया है पूरा क्रिस्टल क्लियर है? इज द स्पीड प्रॉपर? इज द स्पीड प्रॉपर? कोई बोला सर बहुत फास्ट जा रहे हो? इज द स्पीड प्रॉपर? एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ट्रैक? समझ में आ रही है चीजें? ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट। आर यू गाइस एक्साइटेड? आर यू गाइस एक्साइटेड टू स्टार्ट द चैप्टर नाउ? ओके, सिद्धि सिंह, परफेक्ट सर, थैंक यू बेटा। चलो, वेरी गुड। ठीक है, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज सिस्टम। अब बच्चों याद रखना, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज अ सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है सर, एवरीथिंग इज अ सिस्टम? ध्यान से देखना, सिस्टम क्या होता है बच्चों? इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अचीव अ कॉमन गोल। मैं जानता हूँ सेंटेंस थोड़ा भारी लग रहा होगा, 2 मिनट बाद सीधा सरल हो जाएगा। सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अचीव अ कॉमन गोल। सर इसके एग्जांपल्स बताओ ना। एग्जांपल लेते हैं, बाइक दिख रही है बच्चों, बाइक। मुझे बताओ बाइक का अगर ब्रेक नहीं चल रहा होगा तो इन दैट केस विल द बाइक वर्क प्रॉपरली? बाइक का ब्रेक नहीं चल रहा होगा तो बताइए, बाइक का ब्रेक अगर नहीं चल रहा होगा तो बाइक बराबर से चलेगी क्या? नहीं चलने वाली। मुझे बताओ, इट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ इंटरलेड कंपोनेंट्स ना, आपका क्लच, आपका ब्रेक, आपकी सीट, आपके बाइक का इंजन, आपके बाइक की हेडलाइट, बराबर ना? ये सारी चीजें एक साथ वर्क करती है ना, सेट ऑफ इंटरलेड कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अचीव अ कॉमन गोल। कॉमन गोल कौन सा है? कि मेकिंग श्योर कि भाई मैं यहाँ से वहां तक ट्रैवल बराबर से कर पाऊँ, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना।
कि मैं यहाँ से वहां तक ट्रैवल बराबर से कर पाऊँ, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, टू अचीव अ कॉमन गोल। ओके, अलग एग्जांपल लेते हैं, देखो मोबाइल फोन, सबके हाथ में मोबाइल फोन तो होगा, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे बच्चे मोबाइल फोन से आज ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट द पीपल जहाँ मोबाइल फोन से ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, अगर आपके आजू बाजू में किसी के पास भी लैपटॉप है, आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से ज्वाइन किया जाए सारे लेक्चर्स। ओके, आपका कॉन्सेंट्रेशन बेटर होता है, बड़े स्क्रीन के बड़े पर्दे पे अच्छा दिखता है, ठीक है ना। मुझे बताना, मोबाइल फोन में देख रहे हो, आपका यहाँ पे स्क्रीन हो गया, अंदर के सारे पार्ट्स हो गए, कैन आई से इट इज अ सेट ऑफ इंटरलिंक्ड कंपोनेंट्स जो कलेक्टिवली काम करते हैं, बराबर ना, टू मेक श्योर कि मैं सामने वाले व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर पाऊं। इनफैक्ट गाइस, अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, मुझे बताओ, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो सेट ऑफ इंटरलिंक्ड कंपोनेंट्स, बराबर ना। अपना हार्ट, आवर लंग्स, आवर एंटायर बॉडी, दे वर्क कलेक्टिवली टू मेक श्योर दैट वी सर्वाइव। क्लियर हो गया? इनफैक्ट जिस चेयर पे तुम बैठे हो, ओके, वो चेयर इज ऑल्सो अ सिस्टम, बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ इंटरलेड कंपोनेंट्स ना, इट इज अ सेट ऑफ इंटरलेड कंपोनेंट्स दैट इज ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू मेक श्योर दैट यू सिट कंफर्टेबली। आज मुझे बताओ, एक भी अगर पैर बराबर से नहीं वर्क कर रहा है, तुम कंफर्टेबली बैठ पाओगे क्या? बताओ कमेंट्स में। अगर एक पैर भी बराबर से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा टूटा हुआ है, तो इन दैट केस विल यू कंफर्टेबली सिट? बोलो। नहीं ना यार, तुम कंफर्टेबली बैठ ही नहीं पाओगे, कैसे बैठ पाओगे? समझे? सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस, जहाँ पे बेसिकली सिस्टम क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ इंटरनेट कंपोनेंट्स दैट ऑपरेट कलेक्टिवली टू अचीव अ कॉमन गोल। मुझे बताओ, पहले पहले हमारे सिस्टम में इस शब्द का मीनिंग समझ में आया क्या? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, ताकि मैं फिर इंफॉर्मेशन पे जाऊं। सिस्टम क्लियर हो गया सबको, क्या सिस्टम होता है? एवरी थिंग दैट वी सी इज अ सिस्टम, ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब अगला सवाल मुझे स्क्रीन पे आप सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए स्क्रीन के ऊपर सवाल है। मुझे बताओ, आप लोगों ने कभी तो सोचा होगा ना कि मुझे यार काश मेरा एक कोई ना ऐसा बिजनेस हो, ठीक है। कुछ लोग तुम्हारे दिमाग में कुछ तो है क्या ऐसे कि भाई सर मुझे मेरा इसका बिजनेस चाहिए, मुझे मुझे एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना है, मुझे बॉटल्स बेचनी है, मुझे बेसिकली आज एनीथिंग एनीथिंग लाइक दैट। कुछ तो सोचा है किसी के दिमाग में ऐसा है कि सर मेरा बिजनेस होगा तो इसका होगा? किसी ने ऐसा सोचा है? बताइए, एनीबडी हु हैज थॉट ऑफ दिस? किसी ने नहीं सोचा है? ओके, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आज मुझे बताना, ये बॉटल सबको दिख रही है, ब्लू कलर की बॉटल, कैन यू सी द ब्लू कलर बॉटल? ये एक बॉटल है, एंड ये एक दूसरी बॉटल दिख रही है प्लास्टिक की, दिख रही है ना दो बॉटल्स। वही एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे बताओ, आज मुझे एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का प्लान डालना है, ठीक है, मैं ये बॉटल्स मैन्युफैक्चर करूंगा। मुझे बताओ, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले मुझे डर लगेगा कि मैं बहुत खुश रहूंगा? बताओ भाई, मैं ना एक 10 करोड़ का प्लान डालने वाला हूँ, मुझे बताओ डर लगेगा कि मैं बहुत खुश रहूंगा? बताओ, क्या लग रहा है? 10 करोड़ लगता है फैक्ट्री डालने के लिए, डर लगेगा कि भाई ओ माय गॉड, मैं ऑन्टरप्रेन्योर जर्नी ऑन्टरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट, मैं खुश रहूंगा कि भाई बहुत डर लगेगा? डर लगेगा ना यार। क्यों डर लगेगा बच्चों? क्यों डर लगेगा? डर क्यों लगेगा? कल को अगर जो मैंने बॉटल मैन्युफैक्चर की, रिस्क ऑफ लॉस ना, देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस। कल को जो बॉटल बनी, वो बॉटल पब्लिक ने खरीदी नहीं तो, ठीक है। अब भाई हम लोग दारू की बोतल तो नहीं बनाने वाले ना, भाई पानी की बोतल बनाएंगे, दारू की बोतल तो बिक जाती, ठीक है, पानी की बोतल बनाएंगे, ठीक है। तो इन दैट केस यार पब्लिक खरीदे ना खरीदे क्या पता, है कि नहीं? ठीक है, तो यार ऐसे केस में डर तो मुझे लगेगा, बराबर ना, कि यार 10 करोड़ रुपया लग रहा है, कम पैसा होता है क्या 10 करोड़? 10 करोड़ रुपया लगेगा, फैक्ट्री लगेगी, लोग वहां काम करेंगे, और जो बॉटल आएगी, मुझे बताओ, डू आई नो ऑल्सो कि मार्केट में लोगों को कौन सी बॉटल अच्छी लगती है, ये वाली की ये वाली, मुझे पता है क्या? डू आई नो दैट ऑल्सो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि भाई लोगों को कौन सी बॉटल अच्छी लगती है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि भाई नया कस्टमर इस प्राइस के लिए कितना पे करने के लिए रेडी है, मुझे तो वो भी नहीं पता होगा, है कि नहीं, कि ये इसके लिए कितना पे करेंगे लोग, इसके लिए कितना पे करेंगे, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, मुझे पता नहीं है। तो मुझे बताओ, देर इज अ रिस्क ऑफ रॉन्ग प्राइस ऑल्सो, बराबर ना। प्लस अगर बॉटल के अंदर जो पानी है अगर वो दूषित निकल गया, तो मुझे बताओ लोग मेरे ऊपर केस भी कर सकते हैं, वो भी एक रिस्क है, बराबर ना। तो मुझे बताओ, दिक्कत है कि नहीं बिजनेस चालू करने के प्लेयर? दिक्कत है कि नहीं है वो बताओ? दिक्कत तो बहुत है।
अब मुझे बताओ इसको हम सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, कोई तो सोल्यूशन होगा इसका। क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है? किसी और का पैसा लगा दे, बताओ क्या करें, किसी और का पैसा लगा दे, बताइए आपको क्या लग रहा है कि सर मैं अगर वहां होता, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ऐसा करता। अमित बोल रहा है स्ट्रेटेजी, दिशा बोल रही है स्ट्रेटेजी, तुम आजू बाजू में बैठे हो क्या दोनों? अनन्या बोल रही है प्रॉपर प्लानिंग, तीनों आजू बाजू बैठे हैं। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी प्रॉपर प्लानिंग, बट आई वांट टू नो द फर्स्ट स्टेप। तुम इमेजिन करो एज अ बिजनेसमैन, ध्यान सुनना, इंस्टीट्यूट तुम्हें भाई करोड़पति बनाना चाहता है। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुम करोड़पति बनना चाहते हो कि तुम हजारों में खुश हो। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर है वो चीज समझना कि भाई तुम बिजनेस करके करोड़ों कमाना चाहते हो कि भाई तुम हजारों में खुश हो। ठीक है, तो आज सोचो एज अ बिजनेसमैन तुम पहला स्टेप क्या लोगे। आई वांट टू नो द पहला स्टेप, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल डू बिफोर एंटरिंग इनटू एनीथिंग। किसी भी चीज में एंटर करने के पहले तुम्हें पहले क्या करना चाहिए हमेशा? शादी करने के पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, एग्जैक्टली शादी करने के पहले क्या करना चाहिए? कुछ भी कोई सब्जेक्ट में जाने के, कोई पढ़ाई, कोई कोर्स अटेंड करने के पहले क्या करना चाहिए? ये जो तुम चल रहा है, आज जो डेमो लेक्चर चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज नोन? मार्केट स्टडी। संतोष ने आंसर करेक्ट दे दिया है। मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी ना यार। आज रिसर्च कहने से मार्केट रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों, बताइए। मार्केट रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, बराबर है, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कि आज मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। ठीक है, आज मार्केट में भाई कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, ये बॉटल कितने में बिक रही है, ठीक है, लोग कौन सी बॉटल खरीद रहे हैं, ये सबसे पहले मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी मुझे, बराबर है ना। मार्केट रिसर्च करने के अलग अलग तरीके होते हैं, बराबर ना, अलग अलग तरीके होते हैं। मैं घर घर जाके टक 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 करूंगा, भाई देखो भाई कौन सी बॉटल अच्छी लगी, ठीक है, ये कर सकता हूँ। मार्केट रिसर्च ऐसे हो सकती है। ठीक है, तुमने सुना होगा ना समथिंग नोन एज सर्वे फॉर्म्स, सर्वे फॉर्म सुने क्या? सर्वे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो जो सर्वे फॉर्म्स होते हैं बच्चों, वो सर्वे फॉर्म्स भी बेसिकली हम लोग रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास में भाई 12 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। तो तुम 12 बच्चों को मैंने ये फॉर्म भेजा, तुम लोग वो फॉर्म फिल करोगे, बराबर ना। मैंने फॉर्म के अंदर से दो क्वेश्चन पूछे कि भाई आज विच बॉटल विल यू लाइक टू परचेज, दिस बॉटल और दिस बॉटल, फोटो डाल दिया मैंने, विच बॉटल विल यू लाइक टू परचेज, ठीक है। एंड मैंने एक रेंज डाल दिया है, हाउ मच आर यू विलिंग टू पे फॉर द बॉटल, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, ठीक है। मैंने ये दो क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिए। ऐसा फॉर्म मुझे बताओ, मैं सिर्फ तुम 12 लोगों को भेजूंगा कि लाखों लोगों को भेजूंगा, बताओ। कमेंट्स में लेके बताओ, तुम्हें मैं ये क्वेश्चन 12 लोगों को भेजूंगा कि लाखों लोग, बताओ। लाखों लोगों को भेजूंगा। जाहिर सी बात है ना, जितना ज्यादा मेरे पास डेटा आएगा, शब्दों पे गौर फरमाना, जितना ज्यादा मेरे पास डेटा आएगा उतना अच्छा ना यार, उतना मेरे को पता चलेगा मार्केट के बारे में, जितना ज्यादा लोग मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, अभी केयरफुली सुनना। मेरे पास ना मोहम्मद का दिया हुआ आंसर है। मोहम्मद ने बोला सर मुझे ब्लू कलर की बाटली चाहिए और मैं इसके लिए 200 रुपए देने के लिए रेडी हूँ, मोहम्मद ने ऐसा बोल दिया। फिर बच्चों मुझे सांजी दिख रही है, सांजी बेटा दिख रही है। सांजी ने बोला सर मुझे, मैं मेरे मेरे पास मुझे मेरे बैग में एक छोटी बोतल रह सकती है, तो मुझे छोटी बोतल चलेगी, मैं इसके लिए 100 रुपए देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, फिर भाई अमित बोला सर मुझे ये बोतल चाहिए, मैं इसके लिए 300 रुपए देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ, मेरे पास इंडिविजुअल सबके आंसर आ चुके हैं, बराबर ना। लाखों में से एग्जाम्पल लेते हैं, 50,000 लोगों ने मुझे आंसर दिया, दो ही क्वेश्चन थे ना, तो 50,000 लोगों ने मुझे आंसर दे दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ सबका मेरे पास इंडिविजुअल आंसर है, मैं उसका क्या करूँ, अचार डालू? सबका देखते रहो, अरे वाह वाह, अनन्या का ये आंसर है, वाह दिशा का ये आंसर है, अमृता का ये आंसर है, मैं क्या करूंगा उसका? कुछ मतलब है ऐसे इंडिविजुअल डेटा का? इंडिविजुअल डेटा मेरे लिए कुछ भी काम का है क्या? मुझे उस डेटा को क्या करना पड़ेगा? मुझे बच्चों उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, कहना है से मुझे उस डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा ना इनटू इंफॉर्मेशन। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो क्या करना पड़ेगा मुझे, देख रहे हो, आई विल हैव टू बेसिकली प्रोसेस द डेटा। क्या करना पड़ेगा, डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा डेटा को। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट मुझे पता चलेगा ऐसे, ये देख रहे हो जो पाई डायग्राम बनाया गया ना, पाई डायग्राम, उस पाई डायग्राम में मुझे दिख जाएगा, राइट, कि बेसिकली कितने प्रतिशत लोग, एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो अपना डायग्राम बना, ठीक है, इसमें से कितने प्रतिशत लोग जो थे, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, केवल केवल 15% लोग
15% लोगों ने मुझे बोला ये वाला स्मॉल बॉटल, ठीक है, स्मॉल बॉटल बोला, ठीक है। एंड ये जो बचे हुए 85% लोग हैं उन्होंने मुझे बोला ब्लू बॉटल, ठीक है, ब्लू बिग बॉटल, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, तुम्हारे सर पे जो टेंशन थी थोड़ी बहुत कम हुई कि नहीं हुई? बताइए, तुम्हारे सर पे जो टेंशन थी थोड़ी बहुत कम हुई कि नहीं? बोलो। थोड़ा पता है अरे यार मैं कौन सी बॉटल बनाऊं, वो थोड़ी कम हुई। अभी तो रियलाइज हो गया कि भाई 50,000 में से 85% लोग तुम्हारी ये वाली बॉटल पाने के लिए रेडी हैं। उसमें से उसमें से एग्जाम्पल लेते हैं, इसके 90% लोग जो थे उन्होंने बोला सर हम लोग 200 रुपया देने के लिए रेडी है, हम लोग 200 रुपया पे करेंगे इस बोतल का। अब मुझे बताओ, कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत तुम्हें तुम्हारी प्राइसिंग पता चल रही है कि नहीं, कि तुम 150 से लेकर 200 के रेंज में अगर प्राइस रखोगे तो लोग खरीद लेंगे। मुझे बताओ, सर के ऊपर जो टेंशन थे और कम हो गए, है कि नहीं? दो ही हमारे प्रश्न थे ना, कि भाई कौन सी बॉटल बनाऊं और उसको कितने में बेचूं। कम हो गया कि नहीं वो टेंशन? देख रहे हो? हाँ। तो नाउ डू यू रियलाइज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बच्चों? क्या हुआ, मेरे पास हजारों लोगों का डेटा था, लेकिन वो जो इंडिविजुअल डेटा था वो मेरे कुछ काम का नहीं था। वो डेटा जब कन्वर्ट हुआ, वो डेटा जब प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद व्हेन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, तब जाके ये देख लो डायग्राम में, जब व्हेन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन लाइक दिस, दैट इज वेयर इट हेल्प्ड मी इन टेकिंग द राइट डिसीजन, दैट इज वेयर इट हेल्प्ड मी इन टेकिंग द राइट डिसीजन। सो नाउ पे केयरफुल अटेंशन टू दिस सेंटेंस। In the entire enterprise information systems, ठीक है, you will listen to this sentence from me for 500 times. एक ही ब्रह्मास्त्र कंसेप्ट है, that data gets converted into information and information helps you in decision making. Information helps you in decision making. ठीक है, हर जगह पे तुम देखना कि सारे आंसर एट द एंड ऑफ द डे इसी ब्रह्मास्त्र रूल पे आ जाते हैं। पर मुझे बताओ, तुमने ये ब्रह्मास्त्र रूल अभी फील किया कि नहीं? फील किया कि नहीं खुद कैलकुलेट करके, कि भाई हाँ यार सर, इतना सारा डेटा जब प्रोसेस हुआ, क्या हुआ भाई? प्रोसेस हुआ, और तब मुझे जो मिला, मुझे जो समराइज्ड वे में दिख रहा था, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और उसकी वजह से मैं डिसीजन ले पाई या ले पाया। बताइए, समझा कि नहीं? अभी मुझे ये ब्रह्मास्त्र रूल कमेंट्स में लिख के भेजो, डेटा डैश इंफॉर्मेशन डैश डिसीजन मेकिंग, अब भी यू गाइस हैव 1 मिनट। मुझे सारे के सारे बच्चों का रिप्लाई चाहिए, दिमाग में कॉपी कर देने का है, डेटा गेट्स कन्वर्टेड टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गेट्स कन्वर्टेड टू डिसीजन। जल्दी। अमृता का रिप्लाई आ भी गया, ओ भाई लिख के रखा था क्या, मेरा माइंड पढ़ लेगा तुमने? डेटा इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग। ओके भाई, लोग तो टाइप कर रहे हैं उसके पहले, तो आपका रिप्लाई भी आ गया। जल्दी, कम ऑन लेट्स यूज फास्ट टाइपिंग आल्सो। कम ऑन डेटा गेट्स कन्वर्टेड, थोड़ा आज चलो, पूरी मेहनत मेरे साइड से नहीं है, ठीक है। हाँ, दिशा का आंसर आ चुका है, डेटा गेट्स कन्वर्टेड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन गेट्स कन्वर्टेड डिसीजन मेकिंग। डेटा इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग, वेरी गुड, कम ऑन फास्ट क्विक। डेटा गेट्स इनटू इन्फॉर्मेशन, राइट। संतोष इज योर, अनन्या इज योर, विश्वा इज योर। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, सिद्धि ने तो बहुत बढ़िया लिखा है, डेटा गेट्स कन्वर्टेड टू इन्फॉर्मेशन विच गेट्स कन्वर्टेड टू डिसीजन मेकिंग, बहुत बढ़िया। ओके, वेरी गुड। अब बच्चों मुझे बताना, क्या हमने दोनों शब्दों का मीनिंग समझ लिया? अब नाउ लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई वांट द आंसर टू दिस। पे अटेंशन, आई एम आस्किंग यू, करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट। द क्वालिटी ऑफ डिसीजन depends upon the quality of information. Correct ki incorrect? The quality of decision depends upon the quality of information. Correct ki incorrect? Very good. Clear है? Crystal clear? Correct. अब मुझे बताना, नाउ पे अटेंशन, जितना गंदा डेटा उतना गंदा इंफॉर्मेशन और उतनी गलत डिसीजन मेकिंग, बराबर ना? आज इमेजिन करो, हाँ, आज इमेजिन करो तुम्हें अगर कोई गलत गलत बताए और तुम भी गलत गलत डिसीजन ले लोगे तो गलत हो गया ना यार ये चीज, ठीक है। तो इन दैट केस ऑलवेज
always make sure that whenever you guys are taking any decision you guys are taking, you have to make sure that the decisions are backed by valid information. They should be backed by valid information. In that case, कभी भी कोई भी डिसीजन बिना रिसर्च के नहीं लेना है, ठीक है। नाउ लेट्स कंबाइन द टू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब हमने दोनों शब्दों का मीनिंग समझ लिया, बराबर ना। हमने इंफॉर्मेशन भी समझ लिया और हमने सिस्टम भी समझ लिया। नाउ पे केयरफुल अटेंशन। एक ऐसा सिस्टम, ध्यान से सुनना, एक ऐसा सिस्टम जो बेसिकली डेटा को एज एन इनपुट लेता है और इंफॉर्मेशन को एज एन आउटपुट देता है, इंफॉर्मेशन को एज एन आउटपुट देता है जिससे हम डिसीजन ले पाए, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। समझ में आया? यू अंडरस्टूड द आइडियोलॉजी बिटवीन दीज टू वर्ड्स। आज इंफॉर्मेशन हमने समझा और हमने सिस्टम वर्ड को समझा, और अब मैं सिंपली दोनों को क्लब कर रहा हूँ कि आज एक ऐसा सिस्टम जो बेसिकली डेटा को लेता है एज एन इनपुट एंड इंफॉर्मेशन को देता है एज एन आउटपुट, ऐसे ऐसे सिस्टम को हम बुलाते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड गाइस दैट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। मुझे बताओ पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम ये वर्ड समझ में आया? हाउ डिड वी डिराइव दिस वर्ड? आज मैंने डिराइव नहीं किया, हम सबने साथ में डिराइव किया है, बराबर ना। वी ऑल डिराइव दिस डेफिनेशन टुगेदर। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्लियर हो गया? इंफॉर्मेशन एंड प्लस सिस्टम्स, इज इट क्लियर? What exactly is the meaning of information system? Amruta said yes, Anya is yes, Santosh yes. Okay, सर कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो इंफॉर्मेशन सिस्टम के? एक सिंपल एग्जांपल तुम्हारे सामने है, तुमने टैली ये वर्ड सुना होगा ना, टैली। तो गाइस टैली को याद रखना, इट इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्यों सर, ऐसा क्यों? व्हाई इज टैली अ फाइनेंशियल? बिकॉज गाइज ये क्या लेता है, इट टेक्स जर्नल एंट्री एज द इनपुट एंड इट विल गिव यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर ना। इट विल गिव यू बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज द आउटपुट। तो ये इससे इनपुट लेता है और ये आपको इसका आउटपुट देता है। तो याद रखना टैली क्या है। आज के बाद अगर तुम्हें कोई पूछने वाला है सर टैली क्या है, तो याद रखो टैली क्या है बच्चों, इट इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इनफैक्ट अरे अभी तुम सी फाउंडेशन वालों, सेवन वालों ओएमआर शीट देखी ना तुमने? ओएमआर की मशीन है ना, ओएमआर की शीट पे आंसर लिखा ना तुमने एमसीक्यूज? एवरीबडी, ओएमआर की एमसीक्यू मशीन होती है ना, राइट? उसके अंदर क्या होता है, तुम्हारी आंसर शीट जाती है, बराबर ना। एमसीक्यू की आंसर शीट, एमसीक्यू की आंसर शीट जाती है, बाहर क्या निकलता है? तुम्हारा रिजल्ट निकलता है ना यार, रिजल्ट। ये देख रहे हो ओएमआर मशीन, ये भी क्या है? इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो डेटा लेता है एंड तुम्हें क्या देता है भाई? रिजल्ट इज योर इन्फॉर्मेशन। बेस्ड ऑन दैट तुम डिसीजन लेते हो ना, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। समझे कि नहीं? बोलो बच्चों, क्लियर हो गया पूरा? एवरीबडी, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर कि भाई आज पूरा चैप्टर, इनफैक्ट बच्चों एक इंसान, नाउ पे अटेंशन टू दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। मैं, मेरे पास एक आंसर शीट आएगी बच्चे की, मैं उसको चेक करके रिजल्ट दूंगा। मुझे बताओ मैं भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम हूँ कि नहीं? पर मैं मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड? बताओ कमेंट्स में बताओ ना। मैं आई एम अ मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम? बताइए। आज मेरे पास आंसर शीट आई, मैंने चेक किया, रिजल्ट दिया, आई एम अ मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बराबर ना। सब लोग मानते हैं मैं मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम हूँ, बराबर है। अब मुझे बताओ, इंस्टीट्यूट, हमारे जो माई बाप इंस्टीट्यूट है, माई बाप इंस्टीट्यूट तुम्हें कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम सिखाएंगे? मैनुअल की कंप्यूटर बेस्ड? पूरे चैप्टर ही नहीं, पूरे पांचों चैप्टर में, पूरे पांचों चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करेंगे कि मैनुअल? बताइए। पूरे पांच चैप्टर में, यस, एवरीवेयर, एवरीवेयर विल बी लर्निंग अबाउट कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है। ये और अब द मॉरल, हाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम एंटरप्राइज, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। देख रहे हो? यस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। और एंटरप्राइज मतलब क्या होता है बच्चों? एंटरप्राइज इज बिजनेस। आज मैं अगर इस चैप्टर का नाम, सब्जेक्ट का नाम बदल के बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम कर दूंगा तो कुछ गलत है क्या? बताओ। मैंने अगर ईआईएस को कर दिया बीआईएस,
बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, बात तो एक ही है। एंटरप्राइज इज दैट ओनली, बात तो एक ही है। एंटरप्राइज मतलब बिजनेस। क्लियर है? आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ कि ये सब्जेक्ट क्या है भाई। ओके, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है हम ऐसे ही हंसते खेलते खत्म करने वाले हैं। तुमसे मैं आंसर्स बुलवाऊंगा। ठीक है, मैं आंसर्स नहीं देने वाला हूँ, तुमसे मैं आंसर्स बुलवाने वाला हूँ। ठीक है, इन दैट केस आई होप एनी क्वेश्चंस आज के सेशन में। एनी क्वेश्चन बच्चों, आज का पॉइंट क्लियर हो गया? आर यू गाइस क्लियर विद द सेशन टुडे? बोलो। परफेक्ट, वेरी गुड। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, जो अभी ध्यान सुनना, हाँ, कल शाम को कल शाम को 6:30 को ऑडिट का डेमो है। कल शाम को 6:30 को, ऐसे जैसे आज ईएस का डेमो हुआ था ना, कल शाम को 6:30 को ऑडिट सब्जेक्ट का डेमो है। ठीक है, ऑडिट सब्जेक्ट भी मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो कल शाम को 6:30 को ऑडिट का मेरा ही डेमो है। ठीक है, तो इफ एट ऑल यू गाइस वांट यू कैन अटेंड दैट डेमो आल्सो। ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई इतना जो, मतलब इतने जो बच्चे प्यार करते हैं वो क्यों प्यार करते हैं ऑडिट ईएस के लिए। ठीक है, तो कल शाम को 6:30 बजे पता चल जाएगा तुम लोगों को। ओके, बैच इज गोइंग टू स्टार्ट, बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd of January। 3rd January से बैच चालू होगी। ऑल्टरनेट डे बैच होगी भाई, एक दिन ईएस चलेगा शाम को, एक दिन ऑडिट चलेगा शाम को। ऑडिट ईएस चलते रहेगा शाम को। ठीक है, एंड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ योर November 22 इंटर इज ऑल्सो क्लियरली प्लान्ड आउट फॉर यू गाइज। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे दो बैचेस हैं बच्चों, दो बैच है, बैच 1 और बैच 2। ओके, एक बैच है जहाँ पे मॉर्निंग का क्लास है 7 to 10, और शाम का बैच है 6:30 to 9। मॉर्निंग में बच्चों चलता है ग्रुप 1 और शाम को चलता है ग्रुप 2। ठीक है, एंड जो दूसरा बैच है बच्चों, दूसरा बैच इज इन द आफ्टरनून 2 to 5 एंड इवनिंग 6:30 to 9:30। ठीक है, ग्रुप 2 शाम को ही होता है 6:30 to 9:30। ग्रुप 1 जो होगा, ग्रुप 1 के दो बार चल रहा है, मॉर्निंग 7 to 10 एंड आफ्टरनून 2 से 5। ठीक है, तो डिपेंडिंग, कुछ बच्चे डायरेक्ट एंट्री वाले हैं, कुछ बच्चे फाउंडेशन रूट वाले हैं, जिसको जैसे जमता है यू कैन सिट फॉर द बैच। ठीक है, तो इन दैट केस अगर अगर इफ एट ऑल यू गाइज वांट टू ज्वाइन द बैच, आपने देख ही लिया किस तरह से पढ़ाई होती है। ठीक है, सारे लेक्चर्स की बैकअप रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन में मिल जाती है। बाकी के सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो टॉट बाय 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस फैकल्टीज। तो इन दैट केस यू गाइज आर इन वेरी गुड हैंड्स। और यहाँ पे कोई बड़ा बड़ा क्लेम नहीं है। मैं भाई राउंड राउंड बातें करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। एक ही चीज है भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है November 22 में। और अगर आप May 22 के बच्चे हो तो आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रुप 2 नहीं बैठे हैं, तो ग्रुप 2 के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। शाम को 6:30 to 9:30 क्लास होती है। ठीक है, एनी क्वेश्चन गाइस, एनी क्वेश्चन? ओके, श्रेयांश, हाउ टू गेट द लिंक फॉर टुमारो? बेटा हम आपको भेजेंगे ना श्रेयांश बेटा। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, जहाँ पे बेसिकली आज जस्ट एक बार ये जो 9 मेरा जो नंबर है इसको सेव कर लो, अगर किसी के पास नहीं है तो। और मुझे बस, जिसके पास भी, हमारे पास तो आपके नंबर है तो हम आपको भेजेंगे ही। ठीक है, लेकिन किसके पास भी अगर मेरा नंबर नहीं है तो मुझे हाई भेज दो, दैट हाई सर अटेंडेड टुडेस क्लास, वी विल सेंड यू द लिंक। ठीक है, ओके श्रेयांश बेटा, आई थिंक सो आपसे बात नहीं हुई है, बाकी सबसे तो आई थिंक सो डेफिनेटली बात हुई है। ठीक है, अमृता से भी शायद बात नहीं हुई बेटा। ठीक है, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज दो। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? Amruta is saying, so if you want to appear for group 2 in May 22, when will the batch end? Okay, तो अमृता बेटा, द बैच फॉर May 22, पहली बात तो एक मिनट, May 22 दिमाग से निकाल दो। एग्जाम होने वाली है June 22 में। ठीक है, एग्जाम मई में नहीं होने वाली। ठीक है, अभी एग्जाम दिसंबर में हुई है तो एग्जाम जून में होगी। ठीक है, एंड इन दैट केस मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी डाल दिए, ये देख लीजिए। जो दोनों बैचेस है बेटा, दोनों बैचेस विच आर देयर, दिस एडवांस अकाउंट विच इज देयर ये मई तक नहीं है। ठीक है, दिस विल गेट डन बाय 10th और 15th of April। ठीक है, दिस एडवांस अकाउंट विच इज देयर विद दैट विल एंड बाय द 10th और 15th of April। द रीजन बिंग दैट हमने वो मंथ वाइज डाला हुआ है, बट ऑडिट और यस को उतना टाइम नहीं लगता है, दे गेट डन अर्ली। ठीक है, तो बाय 10th of April योर ग्रुप 2 विल बी कंप्लीटेड। अमृता, इज दैट क्लियर विद योर क्वेश्चन? एम इज सेइंग, मनीष इज सेइंग, सर व्हाट अबाउट एडवांस अकाउंट्स? एडवांस अकाउंट्स का बेटा ऑलरेडी हमारा जो डेमो था वो कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, आई विल वापस भी और एक एडवांस अकाउंट्स का डेमो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, वैसे केस में यू कैन अटेंड दैट, और यू कैन डायरेक्टली एनरोल फॉर द बैच। मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ वैसी फैकल्टी पढ़ाती है। ठीक है, कोई मेरे से भी बेटर इनफैक्ट। ओके, हाँ सर, इफ यू वांट टू, ओके, एनी मोर क्वेश्चन बच्चों? एनी मोर क्वेश्चन बताइए, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन। कुछ भी, यहाँ सुनो, सीए रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन है, सर मैं अभी यहाँ फंसी हुई हूँ, मैं यहाँ फंसा हूँ,
सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे प्लीज बताइए। सी, whatever is necessary for clearing the exam that will be conducted, okay? रेगुलर टेस्ट के साथ साथ में आपके बैकअप रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलने वाली है, ठीक है? सारे लेक्चर्स ऐप के ऊपर अपलोड हो जाते हैं, प्रेशर ऐप के ऊपर। एनी मोर क्वेश्चंस? आई एम सरप्राइज किसी ने फीस के बारे में बात नहीं की। वो तो मेरे को पहले, मैं तो इतने सारे डेमो बैठ चुका हूँ, एक बच्चा तो होता ही है, सर फीस कितनी है, सर फीस कितनी है, वो तो बताइए। हेलो, वो क्वेश्चन किसी का है? वेरी गुड, वेरी गुड, ये क्वेश्चन किसी का आया नहीं है। हेलो अरे भाई पूछ सकते हो भाई, तुम लोग, ऐसा कुछ ये नहीं है कि जहाँ पे यू हैव टू टेक द डिसीजन। एनी मोर क्वेश्चन बच्चों? मोर क्वेश्चन? भाई क्या हो, मेरा नेट बंद हो गया क्या? लोगों के रिप्लाई आने बंद हो गए? हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, अच्छा, नो क्वेश्चन चलो, वेरी गुड, नो मोर क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, विल कनेक्ट विथ यू ऑल इंडिविजुअली। ओके, आप लोगों के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली आपसे डिस्कस करने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। ओके, बट आई होप यू गाइस एंजॉयड। ठीक है, देखो यार, सीए के सीए के केस में जहाँ पे यार ऑलरेडी बच्चे टेंशन में होते हैं, ठीक है, टेंशन लेके नहीं पढ़ने का, टेंशन देने का। ठीक है, तुम लोग हमें टेंशन दो ना यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, टीचर लोग को टेंशन दो। ओके, टेंशन लेना नहीं होता, टेंशन देना होता है। ठीक है, तो इन दैट केस यार, हंसते खेलते मजाक मस्ती में टाइम पास में पढ़ो। ठीक है, क्लास के अंदर जब खुद पढ़ रहे हो तो डिसिप्लिन में, क्लास के अंदर फैकल्टी के टाइम पास में पढ़ो। ठीक है, हाँ, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें घर बैठे बैठे यू शुड गेट द सेम काइंड ऑफ अ फिजिकल एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है इन अ क्लासरूम, वो सेम एक्सपीरियंस आपको मिलना चाहिए अंडर प्रेशर। ठीक है, everybody clear? चलो, it's almost 7:30. Thank you so much for joining. I will see everybody tomorrow at 6:30 for the audit का डेमो। ठीक है, 3 जनवरी से क्लास चालू हो जाएगी, याद रखना, 3 जनवरी। ठीक है, देवांश ग्रोवर हैज जस्ट ज्वाइन। ओके बेटा, क्लास खत्म हो चुकी है वैसे किसमें, 1 मिनट। चलो, अरे भाई और कोई क्वेश्चन देगा किसी के? बाकी किसी क्वेश्चन है, और एल्स पीपल कैन लीव। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? बताओ, यू गाइस कैन लीव। जिसको कोई क्वेश्चन है, मुझसे बात बात करनी है तो रुक जाओ, हाँ? मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, चलो।